I really heartily welcome Mr. Saurabh Jain, whom you can see on the screen right now, and I would request him to say few words. Okay. Thank you, ma'am. Good afternoon, Meenakshi, ma'am, Manisha, ma'am, Praveen Tyagi ji and his team, headmasters, principals of all the EMRS of Maharashtra state. It's been a real privilege for me to attend this virtual meeting with all of you. So as ma'am has explained, and in fact from the Ministry of Tribal Affairs side also, during these lockdown times when the teaching at the schools has been disrupted, uh, the online teaching has really come out in a big way. From the ministry side also, we are promoting online learning because we are not sure how much time this lockdown will take and by what time the school will restart. So I think the online learning is here to stay. And in fact, we were discussing with our secretary and in an internal meeting that this year our priority should be on 2 and 3 areas, basically livelihoods, uh, health facilities, and online education. So I think this app, Step app, which has been created by EduSpin, I have personally seen this app. It's a very nice initiative to teach students about the concepts of mathematics and science in a very gamified way, so that they can have fun while learning various concepts. Uh, Maharashtra always has taken the lead in terms of implementing new initiatives and reforms in various sectors. And in fact, they have started the application of this app in their learnings across the schools. Uh, the response has been really very encouraging from Maharashtra. And in fact, I was seeing that many of these students from Maharashtra EMRS, they have been now selected in the National Talent Search Examination, and also they are performing very well in different schools. So from the ministry side also, our task is that this education, we should provide quality education to our students in the tribal schools. And I think this is one of the initiatives through which learning in this time when the formal school is not available, this kind of learning is very beneficial for students, so that there is no gap when they join the school. In fact, based on the success of Maharashtra, we are now recommending this app to various other states, and so many states have now onboarded on this app. They have shown interest in adopting this app for providing teaching to their students, and more states are joining in this effort. So I think these kind of initiatives has to be taken. This is a very nice innovation that has taken in the field of education. And with as the time passes by, this I believe that more and more features will also be added in this app, because some of the states, they are asking for certain features to be adopted in this app. And I am very much sure that Praveen Tyagi and his team will take note of all these feedback from the various schools, and they will remodel the app as per the requirements. So I think this is a very important initiative, and Maharashtra is also already, they have shown the results, and now it is for the other states also to show the results that they can come up with adopting these kind of technologies for online learning. So ma'am, this is from my side. या फिर आरएमओ या फिर एनएसओ का जो थोड़ा बहुत मटेरियल वो उसमें प्रोवाइड किया है, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके वहाँ पे वहाँ आपने टाइम लिमिट दिया है, तो बच्चों को ये भी समझ में आ सकता है कि टाइम बॉन्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है या फिर क्वेश्चन की एक्यूरेसी जरूरी है। ये वहाँ पे उनको समझ सकते हैं कि कितने टाइम में कितना हम क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर समझो कोई लेंदी क्वेश्चन है, वो उस टाइम बॉन्ड में कवर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, किसको छोड़ना है, किसको अटेम्प्ट करना है। Invite Mr. Tyagi again to speak few words. First of all, I would like to thank Manisha ji and Mr. Jain for giving us this opportunity to
provide the children of our tribal schools with this step app, which is a gamified, जो games के through बच्चों को maths और science सिखाने का एक ऐप है. और इसकी रूट्स, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक किसान परिवार से, गांव से बिलोंग करता हूँ, जिसमें हमारे मतलब मेरी फैमिली के हम 3 भाई आईआईटी इंजीनियर बने और वो सब एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ पाए. और मेरी बहुत दिली इच्छा थी, मैं 22 साल से एजुकेशन में हूँ, कि मैं कोई ऐसा काम, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करूँ जिससे बच्चे एक इंटरेस्टिंग वे में लर्न करें और उसे बर्डन ना लगे, पढ़ाई एक बर्डन ना लगे, वो एक गेम की तरह हो. तो वो गेमिफाइड फॉर्मेट में है और उसको विजुअलाइजेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए और ये स्कूल्स को परफेक्टली सप्लीमेंट करता है. तो जो बच्चे को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवरऑल पूरे चैप्टर की आ जानी चाहिए, वो इन गेम्स के थ्रू आ जाती है. और इससे, जैसे मनीषा जी ने कहा, थ्रू आउट द ईयर वी वर इन टच विद द स्कूल्स एंड स्कूल हेडमास्टर्स, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट आर हियर आल्सो. और जब उनके वीडियोस और उनके रिएक्शंस आते थे कि बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं, टीचर्स के आते थे, तो बड़ी खुशी होती थी. और वो लगता था कि जिस मिशन से हम चले थे इस ऐप को बनाने, वो लेवल प्लेइंग फील्ड एजुकेशन में क्रिएट हो पा रहा है और उन बच्चों तक वो बेनिफिट पहुंच पा रहा है. अब मैं एक चीज और यहाँ पे शुरू करने के पहले कहूंगा कि बच्चे की मैथ्स और साइंस अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर दी, तो जितने भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या बच्चे की जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो उसकी सोचने की, समझने की, एनालाइज करने की क्षमता है, वो बहुत इंप्रूव होती है. और इसमें जो मेरे 400 आईआईटीएंस की जो टीम थी, उन्होंने जब इसके क्वेश्चंस और इसका कंटेंट और इसके एनिमेशंस तैयार किए, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 5 साल लगे, तो इस प्रोसेस में वो बड़ा सोच समझ के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं. तो इसलिए वो पूरी तरह से सीबीएसई मैप रखते हुए, लेकिन फिर भी उसमें बड़े इंटेलिजेंटली वो क्वेश्चंस डाले गए. और इन सब का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में अपने बच्चों की परफॉर्मेंस में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हो, दिखेगा. सो आई वांट टू शो यू वन चैप्टर कि हमने चैप्टर को कैसे, मतलब बच्चे को इस गेम के थ्रू कैसे पढ़ाएंगे. राजीव, चलिए फिजिक्स का कोई चैप्टर दिखा दीजिए. टीचर ग्रेविटेशन दिखा दो. सो अभी हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे लर्निंग टुकड़ों में बांटा है. तो पहले बच्चे को सर्कुलर मोशन सिखाते हैं. दिखाइए सर्कुलर मोशन. ये बच्चे को रूल्स बताए गए हैं कि आपकी स्पीड, आपकी गलती, किस चीज को कितना वेटेज मिलेगा. चलिए आगे. Welcome to a new island of circular motion. Do you know what is circular motion? The motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion. It is also termed as translatory motion along a curved path. तो बच्चे को 4 स्लाइडों में सर्कुलर मोशन के बारे में सिखाया जाता है. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? Circular motion. The centripetal force keeps the body moving along the circular path directed towards the center. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? Motion. In a circular motion, the body changes its direction at every point. That is, its velocity changes, and if the centripetal force is removed, the body flies off in a tangential path. It is Sorry. अब हम उन चारों कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बच्चे से पूछा जाएगा. सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द डायमीटर. रॉन्ग, फॉल्स. अगर बच्चा कोई गलती करेगा तो मैं आपको एक गलत आंसर देके दिखाऊंगा. द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसे. यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है, तो ये फॉल्स है, लेकिन हम एक ट्रू आंसर देते हैं. ट्रू बोलिए. तो ये गलत आंसर दिया हमने. तो जैसे ही बच्चा गलती करता है तो बच्चे को उसका करेक्ट सॉल्यूशन बताया जाता है कि भाई उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. फिर रीलर्न करने का कि इस वाले कॉन्सेप्ट को जाके दोबारा से सीखिए, सिखाइए. learn about force that helps for circular motion. जिस कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन था, वो कॉन्सेप्ट फिर से बच्चे को सिखाया जाता है. Circular path directed towards the center. अब बच्चा फिर से दोबारा से 4 क्वेश्चन आंसर करेगा. चलिए, हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, जिससे और हर क्वेश्चन चेंज होगा. इट विल नॉट बी अ रिपीट क्वेश्चन. फॉल्स, फॉल्स,
True. True. False. False. अब बच्चे ने ये सीख लिया है, ये वाला आइलैंड। अब उसका पूरा एनालिसिस उसने, जब वो क्वेश्चन आंसर कर रहा था तो उसने 1 मिनट 31 सेकंड तक क्वेश्चन आंसर किए हैं। हमने लर्निंग वाला टाइम नहीं काउंट किया। उसकी गलतियां 9 में से 7 क्वेश्चंस राइट किए हैं, जो 2 गलतियां की हैं। टाइम एफिशिएंसी, उसकी स्पीड स्लो थी, वो सब एक्सप्लेन किया गया। आई वाले बटन पे दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया है, बच्चे को भी पता लग जाएगा। तो जो गलतियां की हैं बच्चे ने, वो गलतियां आर्काइव्ड है यहाँ पे। पहली गलती दिखाइए, क्या गलती थी? ये गलत, ये क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था। सॉल्यूशन ये है, दोबारा से सीख सकता है, फिर से रीटेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट करिए इसे। इन अ सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड, एक्चुअल में ये फॉल्स है। फॉल्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब उसने अपनी गलती को फिर से रीटेस्ट करके क्लियर कर दिया हमें कि उसने अपनी मिस्टेक के ऊपर फिर से एक टेस्ट देके फिर करेक्ट कर दिया है। और इस तरह से बच्चा सीखता रहेगा हर आइलैंड पे। तो इस तरह से बच्चा सीखते सीखते ऊपर चलेगा और हर आइलैंड पे एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसे सिखाया जाएगा। और जो गलती हुई है वो भी आर्काइव्ड है। तो बच्चे को पर्सनलाइज्ड वे में सीखने को, गलती करने को, फिर रीलर्न करने को पूरा अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बच्चे इतने खुश होते हैं। हमने उनकी फीडबैक जो जिन स्कूलों में इम्प्लीमेंट हुआ है, यू विल सी दैट टीचर्स विल टेल यू कि चिल्ड्रन रियली एंजॉय लर्निंग इन दिस फॉर्मेट। और ये कॉन्सेप्ट 400 आईटीएंस की टीम ने वीव किए हैं और इंश्योर किया है कि ये पूरी तरह से आपके सीबीएसई स्कूल्स की लर्निंग से मैप्ड हो, ना बहुत ज्यादा इजी हो ना बहुत ज्यादा टफ हो। तो जो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने हैं वो जरूर यहाँ पे सीख जाएं डेफिनेटली। इसके आगे जो आपको उसको बच्चे को सब्जेक्टिव चीजें, या जो बच्चे को आपको सोशल स्टडीज या लैंग्वेजेस या मैथ साइंस में भी प्रैक्टिस करवानी है, न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, वो भी और भी एडिशनल आपको कराना पड़ेगा। बट ये आपको एक बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बहुत आपको एक स्टूडेंट का एक लेवल बढ़ा के आपको दे देगा। स्टूडेंट टैलेंट एनहेंसमेंट प्रोग्राम स्टेप, यही नाम रखा गया है। तो इस ऊपर जाना राजीव। अब इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बांट के हर आइलैंड पे बच्चे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मेरे को यहाँ सीखने को मिला और मैं इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर गया। अगर वो गलती भी कर रहा है तो थोड़ी बहुत देर गलती भी करेगा, लेकिन फाइनली सीख के प्रेशर नहीं रहता है कि बहुत लंबी कहानी है। और ऊपर जाइए। और फिर एंड में जब वो बच्चा यहाँ आ जाएगा रिविजन पे, तो उसने जितनी भी गलतियां की हैं पहले, वो सारी यहाँ पे उसे रीलर्न करके री आंसर करनी पड़ेंगी। जब इसे क्रॉस कर लेगा तो वो ट्रेजर चेस्ट पे आएगा, जहाँ पे क्यूमुलेटिव टेस्ट है, जहाँ पे पूरे चैप्टर में जो सीखा है उन सब के ऊपर टेस्ट होगा उसका। और उसके बेसिस पे हमने उसे ऐसे बना रखा है कि भाई ये गेम है और यहाँ पे ट्रेजर, आप खजाना पा सकते हो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। वो ट्रेजर स्कूल के टीचर बच्चे को शाबाशी दे दें, वो भी एक इनफ बड़ा खजाना है उसके लिए। एक मोटिवेशन का काइंड वर्ड, एक चॉकलेट, एक कुछ भी ऐसी चीज जो बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा है इसमें। और जैसे ही बच्चा ये फिनिश करता है चैप्टर, इसकी रिपोर्ट, जो इसमें मोबाइल नंबर पेरेंट का, जो टीचर्स, जो भी इसमें नंबर आप इनपुट करेंगे व्हाइल रजिस्टरिंग, उस वक्त उन सब के पास इस बच्चे की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट जाएगी। टीचर्स के पास डैशबोर्ड में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होगा, एक एक बच्चे की कौन से सब टॉपिक में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। और ये पूरा डैशबोर्ड पे आपके, अभी मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। स्पेस में भी जो बच्चे खेल रहे हैं उनका लाइव डैशबोर्ड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप कैसे अपने बच्चों को, किसी भी स्कूल के किसी भी बच्चे को आप ट्रैक कर सकते हैं एवरी डे। और आपको हर बच्चे का मैक्रो माइक्रो एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर स्कूल आपके पास पूरा डैशबोर्ड पे आपकी फिंगर टिप पे होगा। एक अंधेरी वाला दिखा दीजिए। तो यहाँ पे फिजिक्स में 913 बच्चों की डिटेल्स, केमिस्ट्री में 603 बच्चे खेल रहे हैं, 703 बच्चे, बायो में 66 बच्चे हैं जो बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कम है।
सबके पास बायो नहीं है। अब यहाँ पे हर बच्चे का आपके पास यहाँ पूरी डिटेल्स है। अब जैसे ये टॉपर है जिन्नित, इसकी डिटेल्स दिखाइए मुझे। तो उसने कितने फिजिक्स में कितने चैप्टर, कितना टाइम, कितने आइलैंड्स फिनिश किए हैं, ये टॉपिक है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, वो उसने पूरा कंप्लीट किया है। ग्रेविटेशन पूरा किया है, काइनेमेटिक्स पूरा किया है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर बच्चा है। अब ग्रेविटेशन चैप्टर में उसने ये जो सब टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारे सब टॉपिक्स खेले हुए हैं। और इन सारे सब टॉपिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स पे उसकी परफॉर्मेंस काफी खराब है। 54 इज हिज परसेंटेज देयर, और बाकी सब में 190। यानी कि आपको ये भी पता है कि किस वाले सब टॉपिक में बच्चा वीक है, किस में स्ट्रांग है। आपको जितना भी बारीक एनालिसिस, अब इसकी जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में एनालिसिस है कि भाई बच्चे कितने बच्चे 90 to 100 कैटेगरी में है, या कितने बच्चे 80 to 90 की कैटेगरी में है, या फिर इंडिविजुअल बच्चे के सब टॉपिक की डिटेल, जो भी एनालिसिस आपको यहाँ पे देखना है वो पूरा डैशबोर्ड पे यू विल बी एबल टू गेट एवरी स्टूडेंट्स डेटा। फिर आपको वो क्लास वाइज देखना है, आपको वो पूरे स्कूल का देखना है, पूरे सब्जेक्ट का देखना है, या टॉपिक वाइज देखना है, या सब्जेक्ट वाइज देखना है। वो सारी चॉइसेस आपके पास होंगी। तो कौन बच्चा क्या रैंक है उसकी, क्या प्रोग्रेस है, उसने किस डेट को खेला लास्ट, कितना टाइम इस पे स्पेंड किया, कितने टाइम क्वेश्चंस के आंसर्स किए, वो सारी चीजें यहाँ पे आर्काइव। ये कि जो ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियरली निकल के आए हैं कि जहां पर टीचर्स ने या जिस हेडमास्टर ने अपने आप को इस टूल को डीपली समझा और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, वहां पे जो बच्चों का एंगेजमेंट है और बच्चों की परफॉर्मेंस है, कंप्लीशन ऑफ चैप्टर्स है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसमें थोड़ा सा वो अपने आप दिखता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली एक सिस्टम, कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं है, कौन ट्रू फॉल्स कर रहा है ये बिल्कुल इम्पार्शियल है। इसमें चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फोर्थ पार्टी हो, चाहे सिक्स पार्टी हो, इट इज लाइक अ एग्जाम conducted in a controlled atmosphere which is being captured digitally. So it's a very valid evaluation कि एक बच्चे को कितनी चीज उसने कितनी बार की, क्या समझा और सही और गलत था या नहीं था। तो I think this dashboard usage for monitoring, for understanding by every institutional head at different levels is important. आपको हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कभी भी शिक्षा में या हेल्थ इंडिकेटर्स में या सोशल सेक्टर में, वो हमेशा ये होता है कि हम मेजरेबल आउटकम्स पे कैसे मेजर करें लर्निंग आउटकम्स को। एंड आई थिंक at least one strong part of this solution which I find, one can find always ways for improving, nothing is perfect, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस टूल से ये लगता है कि कितना भी इम्परफेक्ट हो, अगर हम परफेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं तो कम से कम हमें बेसलाइन बच्चों ने कितना इनपुट किया और उसका क्या आउटपुट है ये तो कम से कम दिखाई देता है। और उसके साथ एक mirror image of the school and its engagement with the learning tool.